I mean a lot. I mean I've lost the count कि कितने बार आप रिजेक्ट होते हो, बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी. इट्स नॉट मी. आई थिंक रूपाली मैम ने भी मुझे एक दिन बताया था कि शी हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. समर तो तू था ही, बट एज अ पर्सन आई एम टेलिंग यू, रूपाली टेलिंग दिस टू सागर दैट you have made me cry as an artist, and that was the biggest compliment I think I would have gotten in my life till date. आई एम ग्लैड दैट आई बिकेम एन एक्टर, बिकॉज अगर ये नहीं करता तो शायद बहुत डिफिकल्ट होता मुझे खुद को जानना कि मैं क्या करता, क्योंकि फिर माई फैमिली इज़ फुल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मैं भी शायद वही करता कि हाँ ठीक है पूरे खानदान चार्टर्ड अकाउंट, मैं भी यही करूँगा. मुझे यहाँ शो छोड़ने से पहले ही मुझे ऑफर आ गया था बिग बॉस का, एंड आई वेंट ऑल्सो. आई हैड अ मीटिंग विद देम. इट वर्कड आउट वेल ऑल्सो, बट माई पेरेंट्स वर नॉट रियली लाइक इंटरेस्टेड. मेरी मॉम तो सीधा बोली कि यार मुझे तो इतना भी फेमस नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विद वॉट एवर यू आर. झलक की बात रही, झलक भी मिला था, बट अगेन आई वॉज बाउंड बाई कॉन्ट्रैक्ट. इसके लिए मम्मा मना नहीं करती, बट डेफिनेटली फिर कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी था. शो में मेरी जो वाइफ बनी है, मतलब पहले गर्लफ्रेंड थी, हाँ निशी, वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो वेयर वी वर सेइंग यार लगता ही नहीं है कि हम नंबर 1 शो में काम कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, विच इज़ actually a good thing. You've seen him in Anupama winning hearts for his character Samar, and now that fans are not happy with his exit, let's talk to him about what happened and why are we not seeing him on screen. So let me introduce you to Sagar Parekh. Hello guys. So, talking about your journey, जो इतने टाइम से एक आपके पहले शो से लेके अब तक, how would you define it? How has it been for you? It's been magical, I just saw this. I think everybody must have seen that, वेब सीरीज़ आई है रोमांटिक्स, दी रोमांटिक्स करके. इट्स अबाउट यश राज. सो वहाँ पे देयर इज़ एन इंटरव्यू वेयर शाहरुख खान इज़ आस्किंग यश राज जी दैट मतलब what do you think कि आगे आपको काम करना है कि नहीं करना. तो he said I don't calculate things, I just move with the flow wherever I think the destiny is taking me. So I think my career has been very similar to that, कि मैंने कभी जो सोचा था वो तो चलो हुआ ही. I have been lucky that way कि हाँ जैसा मैंने मतलब I could predict things कि हाँ अगले साल तक मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, which I did. With my hard work, and of course luck supported me. I was at the right time at the right place, these things, whatever, it just worked out for me. And I also realized ki at this time what people are expecting from me, and by people I meant not the audience that comes when you are playing a role on social media, platforms ki haan social media pe agar engagement chahiye to you should know that what people are expecting from you. And similarly I think in our industry also, a writer or a producer or if someone is getting casted for a show, तो वो लोग भी expect करते हैं कि in this actor we want to see something like this. So and I think as an actor you have to understand that अच्छा ये है, and if you can give that you will get the show, and that's what I have been doing, and I've been lucky that way that people loved me and loved my craft the way I did, and whatever I do on screen they just love it, and audience also has loved me immensely. I think I have never got hate or towards my acting or my craft or some drawbacks regarding that. Everybody has said that yes you do have that X factor, which I take as a compliment and also as a motivation कि हाँ आगे और इसको improve करना है. So it's been quite nice, I have gone with the flow, and flow में आके देखो number 1 show पे 2 साल गुजार लिए, and one of the most I'm just saying समर इज़ एक्चुअली मतलब जब दैट सीक्वेंस आया था तो a lot of people like I think from somewhere my friends were telling, even I think a lot of celebrities like Rani Mukherjee and all these people, Karan Johar and all, everybody इनके घरों में भी चलता है शो, तो इनके घरों में चलता है तो डेफिनेटली वो मुझे भी पहचानते होंगे. तो आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. दीज पीपल have been in the industry I think more than my age, whatever my age is, so I think it's a blessing, and that's what it takes. It's actually magical to go with the flow, and ऐसा प्लान करते तो शायद I would have been disappointed by a lot of things कि हाँ मैंने ऐसा सोचा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सोचा ऐसा नहीं हुआ. तो I think it's been amazing till date. So when we say कि हर इंडस्ट्री में अगर आप आगे भी बढ़ते हो तो रिजेक्शंस भी होते हैं. So have you faced any of those, or how have you handled them? I mean a lot.
आई मीन आई हैव लॉस्ट द काउंट कि कितने बार आप रिजेक्ट होते हो, बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी, इट्स नॉट मी। आई थिंक रूपाली मैम ने भी मुझे एक दिन बताया था कि शी हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। शी इवन टोल्ड, आई थिंक इंटरव्यूज़ में भी आपने कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस ने सुना ही होगा कि शी हैज़ टोल्ड दैट उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो शायद ये अनुपमा प्ले कर पाएंगे, बिकॉज इससे पहले सारा भाई वर्सेस सारा भाई में शी वॉज प्लेइंग अ होल डिफरेंट कैरेक्टर, एंड बिल्कुल ही एकदम it was opposite what she's playing right now, how she looks right now, and she didn't expect कि हाँ ये शायद वो ऐसा प्ले कर पाएंगे और प्ले करने के बाद लोग इतना प्यार देंगे। Correct. So again I think you know it's like you don't have to plan things. I think people just, you know, if you put the right efforts at the right time at the right place, I think things fall in place. So I think that's how it is. So you know, Internet Wala Love was one of the shows where people loved you a lot. Yeah, that one was my first show. Yeah, that was my first show. And वो एक जर्नी बहुत अलग है, हाँ, वो एक फैमिली बहुत अलग है। वो शो बैक करने की भी जर्नी बहुत अलग है। It's been long back, but if you really want to listen, I will tell you. Please tell. So मैं न्यू कमर था, एंड फॉर अ न्यू कमर यू नो व्हेन यू कम, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो आपको आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स इफ दे विल सी समडे दिस यू नो इंटरव्यू, दे विल रिलेट टू दिस कि एक कंटिन्यू शो मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई हैड डन एपिसोडिक्स, आई हैड डन एड्स, आई हैड डन एवरीथिंग, बट दैट स्टेबिलिटी जो आपको एक एज एन एक्टर चाहिए होती है कि मतलब आप फिल्म कर सकते हो, वेब सीरीज़ भी कर सकते हो। आई हैड डन वेब शोज ऑल्सो, बट उसकी स्केड्यूल आई थिंक 30 to 35 days or 40 days if you're playing a very prominent character, otherwise it's 10 to 15 days, and uske baad again you're back to that routine where you're giving auditions and you're looking for work. So I was also at that stage, and I was like yaar, I think I should do some TV show where at least I have some financial stability, and as well as you know मतलब मुझे अपने क्राफ्ट को ब्रश अप करने का एंड शोकेस, मतलब अगर मैं डेली टीवी पे देखूंगा तो आई विल बी अ फेस यू नो वेयर पीपल थॉट। उस समय ऐसा ही था, आई वाज जस्ट आई थिंक 19 और 18 एट दैट टाइम, एंड उस समय जितना दिमाग चलता था उस हिसाब से हम यही सोचते थे कि डेली टीवी पे आएंगे तो लोग देखेंगे, पहचानेंगे और मैं फेमस हो जाऊंगा। ऐसा था कि हाँ मेरे क्राफ्ट को लोग अप्रिशिएट करेंगे। सो माई बिगेस्ट स्ट्रगल वॉज कि जब मैं ऑडिशन देने गया था, देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 पीपल हु हैड बीन शॉर्ट लिस्टेड, मतलब आए तो बहुत सारे थे, बट उसके अलावा 20 से 25 लोग उन्होंने ऐसे शॉर्ट लिस्ट करके रखे थे कि हाँ मैं ये पसंद है। एंड जब मैं आया था इट वॉज ऑलरेडी वेरी लेट, बिकॉज अगर इतने सारे लोगों में 20 से 25 लोग सेलेक्ट करके रखे हैं तो मैंने सोचा कि शायद मैं लेट हो गया हूँ, एंड यू नो आई थिंक ऑडिशन लेंगे नहीं, बट सम हाउ द क्रिएटिव वॉज प्रेजेंट आउट देयर, एंड आई वॉज लाइक कि आई जस्ट बम्ड इन टू हर एंड आई आस्क्ड हर कि यू नो ऑडिशन चल रहा है, मैं दे सकता हूँ, एंड मुझे पता नहीं था कि वही क्रिएटिव है, एंड शी टोल्ड यू नो हाँ डेफिनेटली कम। फर्स्ट शी स्टेयर्ड एक्चुअली फॉर 10 seconds कि ऐसे मुझे देखा, एंड आई वाज लाइक व्हाई शी स्टेयरिंग एट मी लाइक दैट, एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया ओके शी माइट बी फिगरिंग आउट कि मैं लुक में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, एंड उसके बाद मुझे एक लंबी सी स्क्रिप्ट दी और वो पढ़ के मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, एंड देन आई टोल्ड हर, शी told कि you have, she was very like upfront, she told you have 10 minutes, get prepared and come in front. I'm like okay, मतलब then I was like 10 मिनट मैं इसको कैसे करूँ, but somehow you know I had this so much of pressure on me कि नहीं यार मुझे ये चाहिए, and होता है ना कि sometimes you feel in life कि यार अब मुझे चाहिए, I'm frustrated, अब मुझे ये लेना ही है किसी भी हाल में। So I was like that, मैंने ऑडिशन पर I gave my best, मतलब जितनी एक्टिंग आती थी उस टाइम के हिसाब से वो पूरा एकदम जी जान होता है ना, मतलब एक इंडिया पाकिस्तान मैच वाला कि लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल पे छक्का मारना ही है, वही सेम सिचुएशन। तो मैंने बोला कि यू नो वो मेरे दिमाग में वो शाहरुख खान का वो चक दे इंडिया वाला स्पीच चल रहा था कि यू नो यू जस्ट हैव 10 minutes, इसमें जो उखाड़ना है उखाड़ ले, इसके बाद नहीं मिलेगा। एंड मुझे पता चला था कि दैट इंटरनेट वाला शो विच एक्चुअली वॉज ऑन अ बिग बजट, तो हाँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी, एंड इट वाज अ डिफरेंट शो, मतलब इट वाज नॉट लाइक अ टिपिकल हाँ डेली सोप जैसा। तो मुझे लगा कि हाँ
अच्छा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, आई हैव टू क्रैक दिस एनी हाउ। एंड कट टू व्हेन आई गेव द ऑडिशन, सो एवरीबडी वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ओके, मतलब देन दे स्टार्ट आस्किंग मी। तब तक मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैंने अच्छा किया है एंड दे हैव लव्ड इट, बिकॉज उनके फेसेस पे था वो। एंड प्रॉब्लम तब आई जब उन्होंने पूछा कि तुमने इससे पहले क्या किया है। अब बात वही हो जाती है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो दे वर लाइक कि यू नो व्हाट, वी आर कास्टिंग ऑल, यू नो वी वांट नोन फेसेस एंड ऑल, एंड इट्स ओके, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ बैड एक्टर और समथिंग लाइक दैट, यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन द ऑडिशन, दिस इज एग्जैक्टली शी वाज टेलिंग मी, बट वील कीप यू ऑन होल्ड, आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारा होगा, बिकॉज वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर यू नो नोन फेसेस और एटलीस्ट सेमी नोन फेसेस। आई एम लाइक तुम अगर काम नहीं करूँगा तो मैं नोन कैसे बनूँगा। आई वॉज वेरी अपफ्रंट कि अगर काम नहीं करूँगा तो मैं नोन कैसे बनूँगा। तो शी वॉज लाइक आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट यू नो वी कांट रियली डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट शो एंड वी नीड सम एक्टर्स हु कैन रियली पुल द क्राउड। आई एम लाइक ओके, दैट मेक्स सेंस, कोई भी बिजनेस करेगा तो आई थिंक इट डज मेक सेंस। सो आई वॉज सैड एट दैट पॉइंट कि फिर मुझे लगा कि मैं गाड़ी में बैठा और मम्मी को कॉल किया, मम्मा ऐसा है कि दे वर टेलिंग मी कि नोन बनना पड़ेगा, ये क्या इंडस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब व्हाट टू डू। एंड उसके जस्ट मम्मी से बात करते दे गेव मी अ कॉल, लिसन यू डोंट टेक अप समथिंग, वी आर फिगरिंग आउट, आई विल सेंड योर ऑप्शन टू द चैनल, लेट्स सी, आई विल रिक्वेस्ट देम कि चलो ठीक है, बट ही इज गुड एक्टर, सो वी कैन यू नो टेक रिस्क। ऐसा है इसके साथ, इवन इफ ही इज नॉट अ नोन फेस और सेमी नोन फेस, बाकी सारे तो है ही। तो मुझे एक थोड़ा होप आया कि ठीक है। अब इस होप के बाद आई थिंक 15 दिन हो चुके थे, एंड यू नो मेरे पास सिर्फ एक ही इंसान का कॉन्टैक्ट नंबर था जिसको मैंने दिन रात परेशान किया है, वो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर का, उस प्रोडक्शन हाउस का। तो मैं दिन रात मैसेज करता, कुछ अपडेट आया, कुछ अपडेट, बिकॉज शी हैड टोल्ड मी कि हम भेजेंगे एंड देन रिवर्ट विल कम इन 1 or 2 days। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई रिवर्ट नहीं, एंड दे आर स्टिल टेलिंग मी, यू नो दे आर स्टिल लुकिंग, मतलब वो अभी तक देखा नहीं है उन्होंने। मैंने बोला शो स्टार्ट होने वाला है एंड दे हैवंट सीन माय ऑडिशन आल्सो, तो मतलब यू नो या सो यू रियलाइज कितना मेंटली आप प्रेशराइज्ड हो जाते हो। एंड उस समय ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके बोला है। सो आई वाज नॉट लुकिंग फॉर अदर वर्क आल्सो कि एक बार इसका आ जाता है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड इसमें मेरा रोल भी काफ़ी अच्छा था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, बाकी शोज़ में छोटे मोटे रोल मिलेंगे, इसमें तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है एंड सारे यंगस्टर्स हैं, तो ऐसा मैं आउट मतलब डिफरेंट भी नहीं लगूंगा कि एक छोटा सा बच्चा आके ऐसा कर रहा है। तो ऐसा था। देन ऐसे करते करते यू वोंट रियलाइज 3 महीने हो गए थे, एंड आफ्टर 3 months व्हाट दे सेड, यू नो सॉरी आपका नहीं हो पाया। दे हैड कॉल्ड मी, या दे वर लाइक आपका नहीं हो पाया। आई एम लाइक 3 महीने में घर पे बैठा हूँ, ठीक है, और एवरी डे आई गॉट डिप्रेस्ड कि कब जवाब आएगा, कब जवाब। एट अ पॉइंट आई वाज लाइक कि मुझे नहीं करना है यार, आप बता दो, मैं दूसरी जगह चले जाता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेता हूँ मैं। एंड उन्होंने बोला आपका नहीं हो पाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, शाम को फिर कॉल करके बोलते हैं एक काम करो, आप फिर से आओ, आपका ऑडिशन एक और बार करेंगे। मैंने बोला अब फिर से करना पड़ेगा? तो बोले ऑडिशन नहीं है, अब मॉक शूट है, मतलब मैंने बोला ठीक है, मॉक शूट मतलब इट्स अ डिफरेंट, एक नेक्स्ट लेवल स्टेज होता है ना, जैसे आप इंटरव्यूज देते हो तो आप जैसे हाँ अभी इंटरव्यू हुआ, देन दे आल्सो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा चल रहा था एंड मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अकेला हूँ मॉक शूट में, एंड आई विल डू अगेन द सेम थिंग, यू नो आई एम गोना किल इट, आई विल टेक माई टाइम बिकॉज दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी अलोन। व्हेन आई वेंट देयर देयर वर 15 पीपल। आई एम लाइक ऑडिशन में 25 थे, अभी भी 15 हैं। आई मीन अभी भी आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एंड एवरीबडी इज कास्टिंग जस्ट फॉर माई कैरेक्टर। दे वर मतलब इतना हसल चल रहा था उनका, एंड मैंने बोला अब तो सच में नहीं होने वाला ये। एंड कट टू यू नो आई गेव मॉक शूट एंड अगेन 15 दिन लगे, एंड देन अगेन आई गॉट अ कॉल कि यू नो आपका नहीं हो पाया। एंड फिर शाम में मुझे कॉल करके बोला दिस इज लाइक डेस्टिनी। शाम में मुझे ऑफिस में बुलाया एंड दे सेड अब हम ऑडिशन नहीं ले रहे। एंड व्हेन आई एंटर्ड देयर वर 15 पीपल सेमी सर्कल में बैठे हुए थे एक ऐसे ही रूम में, एंड दे वर सेड यू नो व्हाट, परफॉर्म लाइव। आई थिंक दे वर channel people also, and I was like okay, this is my Chak De India moment where the audience is sitting and I felt like I'm performing in a theater, and my creative came to me and said you know what Sagar, देख मैं तेरे लिए बहुत लड़ी हूँ, ठीक है, you have to prove yourself, and that you know pressurized but somehow I did it, and they played a prank on me because 3 महीने आप किसी के साथ ऐसा खेलो ना तो पूरी टीम जो कास्टिंग कर रही थी, जो मेरा ऑडिशन ले रहे थे, they got so attached to me कि they played a prank। जब मुझे शो मिल भी गया they were like अरे यार फिर नहीं हो पाया तेरा, बट तू आज हम किसी और शो के लिए ट्राई करते हैं,
तो आई वाज लाइक ठीक है, अब ये नहीं मिला तो दूसरे शो के लिए तो जाना ही पड़ेगा. Right. मैं गया एंड दे सेड यू नो व्हाट, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट, साइन इट एंड यू हैव गॉट द शो. एंड आई वाज लाइक ओह शिट, दिस इज माय आई वाज लाइक यू हैव नो आइडिया Oh हाउ my हैप्पी आई God. वाज. I literally was on my knees in the office and everybody was like फिर मैंने सबको पेस्ट्रीज भी खिलाई थी because everybody अब तो पार्टी देना ही पड़ेगा, इतना स्ट्रगल किया तूने शो के लिए. तो that was my biggest struggle to get a break for a TV show. तो it was like a film only. मतलब बहुत ऐसे I cannot make you understand how what emotionally I felt, but it was tough for me. Indeed, that was a journey, I would Yeah. say. And somewhere, you know, that show had a lot of fan base, Yes, which yes, was yes. more of youngsters. Yes, yes. बहुत कम shows में Yes, youngsters attached youngsters होते आते हैं. हैं. Yes. And that whole family was different. That whole emotion was Yes, yes, different. yes, And then yes. obviously one tragedy and Yeah, how yeah. things have changed. That is sad. Yes, things have changed. I think I still remember when you know the show was pretty well. We were not bad with TRP also. I still remember, but you know it was something different that I think channel was trying to experiment. उस समय नया दौर आया था जब planning to launch the platform. Its platform. It was you know revamping the whole platform as for web series and all. तो उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि इसको हम वेब शो के मतलब हिसाब से हम इसको लॉन्च करेंगे, बट दे थॉट कि आई थिंक यू नो दिस कैन बी अ ब्रेकिंग पॉइंट इन टीवी वेयर ऑडियंस गेट टू सी ऑन टीवी समथिंग लाइक वेब शोज. तो इट वॉज वेरी एक्सपेरिमेंटल विच ऑल्सो वर्क. ऐसा नहीं था कि पीपल डिडंट लाइक इट. आज भी मुझे उस शो के रिगार्डिंग बहुत सारे टैग्स fan messages आते हैं कि I have seen you there and like that. It was an amazing show and actually you're right, a lot of youngsters, you know, it was like you were seeing MTV, you know how people Correct. used to watch MTV like Kaisi Hai Yaariya. That is another story how I bagged Kaisi Hai Yaariya and my friends went crazy कि अच्छा अब तू Kaisi Hai Yaariya में भी आएगा. So yeah, but it was fun. You're right. People, I think youngsters were quiet and it was very famous. That's where I got a little fame from there. And then I kept on getting shows from there. So, you know, coming to Mumbai from a different city and living here, how has that been? How were your initial days? I think I've heard, you know, it's like from a lot of people. हम फिल्म में भी देखते हैं कि मुंबई बहुत स्ट्रगलिंग शहर है. But I think how you take it, it depends on that. I think I never felt that Mumbai has troubled me in any way. I think it's been 7 years in Mumbai and 6 years in the industry. बट आई हैव नेवर मतलब ऐसा कभी परेशानी नहीं हुई मुंबई में. सारे बहुत अच्छे लोग मिले, सारे मतलब काफ़ी लविंग लोग मिले. कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, रोड पे भी नहीं हुआ कि कभी किसी से ऐसे मतलब ट्रैफिक में झगड़ा हो गया हो या किसी से ऐसी हो गई. सो आई बीन लकी दैट वे दैट मुंबई हैज़ बीन रियली स्वीट टू मी. स्ट्रगल नहीं हुआ. स्ट्रगल ये था कि हाँ समझ नहीं आता था. आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माई यू नो family to come to this industry and this is my mother's dream. I never thought कि I would become an actor, but you know people know by now, जितने भी मेरे fans हैं और जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि I never had this plan of becoming an actor. It was totally opposite. This is my mother's dream. My mother was very keen for me to become an actor and she 12th के बोर्ड्स के बाद रिजल्ट आने में कुछ टाइम होता है 3 महीनों के, तो उन्होंने बोला कि जाओ यार मुंबई चले जाओ, यहाँ रहोगे तो दोस्तों के साथ इधर उधर घूमोगे, इससे अच्छा आप मुंबई चले जाओ, वहाँ जाके देखो लाइफ क्या होती है. आई बोला ठीक है यार मुंबई जा रहे हैं, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे. थॉट यही था कि 3 महीने ही तो है, 3 महीने चिल करना है, फिर वापस जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है. बट you know again destiny has its own plans and you know I am glad that I became an actor because अगर ये नहीं करता तो शायद बहुत डिफ़िकल्ट होता मुझे खुद को जानना कि मैं क्या करता, क्योंकि फिर माई फैमिली इज़ फुल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मैं भी शायद वही करता कि हाँ ठीक है पूरे खानदान चार्टर्ड अकाउंट मैं भी यही करूँगा. होता नहीं होता वो बात अलग है बट अपेरेंटली मैं ट्राई तो वही कर रहा होता. कुछ अटेम्प्ट्स के बाद तो शायद yes. But I was not bad at studies. I got 84% in 12th. So yeah. So that I think CA हो जाता. Yes. हो जाता. But you know, somewhere it's good that you have your chartered accountants at home only, so you can always keep Yeah, yourself. but the sad part, they can't you know handle my books. It's against the rules. Yeah, so ऐसा नहीं हो सकता. But ठीक है. But you At least I always have have this financial advice. knowledge where Yeah. I have to invest and where not I have to invest. Oh, that is a plus point for me at whatever age I am. So I'm handling my financial things also very well. So you know there were these amazing rumors, and I think you agreed to one of them that you were offered Jhalak and Big Boss as well. Yes. So I mean, were you keen on either of them? of course I was. Anybody would be like, but keen as in it's a different type of you know feeling जहाँ आपको लगता है कि wow मतलब
इतनी जल्दी बिग बॉस, मतलब आई थॉट कि व्हेन आई वुड बी इन लाइक लेट 30s और समथिंग लाइक दैट, जब आई हैव डन इनफ ऑफ लीड्स एंड शोज एंड व्हाट नॉट, तब जाके मुझे ऑफर होता और मैं शायद तब करता। एंड मुझे यहाँ शो छोड़ने से पहले ही मुझे ऑफर आ गया था बिग बॉस का, एंड आई वेंट ऑल्सो, आई हैड अ मीटिंग विद देम, इट वर्कड आउट वेल ऑल्सो, बट माई पेरेंट्स वर नॉट रियली लाइक इंटरेस्टेड। मेरी मॉम तो सीधा बोली कि यार मुझे तो इतना भी फेमस नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विद वॉट एवर यू आर। आई एम लाइक आप ही चाहते थे ना मैं मतलब एक्टर बनूँ। शी सेड लिसन आई वॉन्ट यू टू बिकम एन एक्टर नॉट अ सेलिब्रिटी ओनली। तो सेलिब्रिटी तो तुम बन ही जाओगे अगर तुम एक्टिंग अच्छी करोगे तो आई थिंक दैट्स वॉट impacted me and I said okay there is time. Also my friends suggested कि यार ये तो तू अगले साल भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। एंड ऑल्सो उस टाइम तक मतलब देयर वर चांसेस आई वुड रिटर्न इन द शो। तो हाँ, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ था, तो दैट वाज ऑल्सो यू नो आई वाज बाउंडेड बाय दैट कि हाँ आई डोंट वांट टू मेस अप थिंग्स। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, कोई चीज़ हाथ से जा रही है, अगेन आई विल लीव इट टू द गॉड। एंड मतलब यू नो कि अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। Correct. हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अनुपमा करूँगा, कैसी है यारिया करूँगा, या इश्क में मरजावा करूँगा, या बालिका वधू करूँगा। सारे टॉप शोज हैं, मतलब यू सी इन माई पोर्टफोलियो आई बीन वेरी लकी दैट ऑल द शोज आई हैव डन आर ऑन टॉप नॉच लेवल एंड नॉट अ सिंगल पर्सन लाइक दैट अगर मैं नाम लूँ और वो ना पहचाने कि हाँ ये कौन सा शो था। बिकॉज आजकल लॉट ऑफ शोज कम एंड गो एंड यू डोंट रिमेंबर द नेम्स कि इफ आई एम एन एक्टर एंड इफ आई एम इन द पब्लिक एंड पीपल आर आस्किंग अच्छा आप एक्टर हो, आप कौन सा शो कर रहे थे लास्ट, एंड इफ आई से हम नहीं जानते। बट if I say that you know I did Balika Vadhu, I did Ishq Mein Mar Jawa, I did Kaisi Hai Yara, I was in Anupama, everybody is going to realize. For that matter, my first show Internet Wala Love, everybody recognizes that. So I've been really lucky and blessed that way कि हाँ चलो अच्छी जर्नी रही है अभी तक तो, and इतनी जल्दी बिग बॉस मिला। एंड ऑफकोर्स मम्मा ने बोला नहीं, बिकॉज ऑल्सो देवर टू मेजर रीजन्स, आई विल बी वेरी फ्रैंक कि एक तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड था एंड आई डिडंट वांट टू disrespect my producers and the contract or my profession because they have been really nice to me. तो मैं कोई आप because Rajan sir has given me a lot, you know the show has given me a lot, so I wanted to be loyal to that show, which I will always be. मतलब अगर कल को उनके plans change भी हो जाए कि हाँ ठीक है we are planning to bring you back or something like you or we want you know who looks similar to Samar, I would be always up for it कि हाँ ठीक है सर आप you want it, I will do that because यार आज जो हूँ इस शो की वजह से हूँ and I will be always grateful for that. And झलक की बात रही, झलक भी मिला था but again I was bound by contract. इसके लिए मम्मा मना नहीं करती but definitely फिर contract को respect करना बहुत ज़रूरी था। अभी contract ख़त्म है तो अभी वापस आई एम इन टॉक्स, सो लेट्स सी मतलब मे बी इन वाइल्ड कार्ड और समथिंग लाइक दैट, लेट्स सी। दैट्स नॉट समथिंग आई ऑल्सो नो एंड दे ऑल्सो डोंट नो बिकॉज अभी दोनों शो स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। सो वाइल्ड कार्ड की तो बात अभी यू कांट यू नो दे आर ऑल्सो नॉट प्लानिंग कि वाइल्ड कार्ड में क्या करना है क्या नहीं, बट आई होप अगर होता है एंड अब लगेगा तो ज़रूर जाएंगे, नहीं तो अगले साल जाएंगे, कभी तो जाएंगे ही जाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो रियलिटी शो के अलावा एज एन एक्टर नाउ व्हाट यू आर लुकिंग आउट फॉर? I'm looking for जब आप it's a very difficult question for someone who will come out of Anupama क्योंकि इंडिया के टॉप शो से आप बाहर आए हो एंड स्ट्रगल ये नहीं होगा कि आपको काम नहीं मिलेगा। मुझे काम बहुत मिल रहा है, टचवुड कि बाय गॉड्स ग्रेस आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क। हर दिन मुझे किसी नए काम का फ़ोन आता है, बट द स्ट्रगल इज़ कि अनुपमा के बाद एटलीस्ट इट्स माई थॉट कि मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ आई एम रेजिंग द बार्स, आई वांट टू गो अप, आई डोंट वांट टू सेटल एट वन प्लेस कि हाँ अभी अनुपमा या अनुपमा ऐसा। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू मैच द लेवल ऑफ अनुपमा क्योंकि ये ऐसे शोज आई थिंक वंस इन 10 years और 15 years आते हैं। तो ऐसा भी नहीं सोच रहा कि समथिंग लाइक अनुपमा आई विल डू, बट समथिंग दैट एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड विथ एंड यू नो वेदर इट बी you know money wise or script wise or the role wise, I should be happy with it. That's why I want to do shows like maybe non-fiction shows where because you know uski reach alag hoti hai, audience alag hoti hai, and you it helps you in your career also. So that's what I'm aiming for, and I'm still juggling with a lot of scripts, matlab not scripts as in the shows जो offer हो रहे हैं कि should I do this, should I do that. तो बहुत सारे मुझे ऐसे लोगों से बात करनी पड़ रही हैं, जैसे मेरे दोस्त हो गए, जो मेरे सीनियर्स हो गए, तो आई हैव टू टॉक टू देम लाइक दैट। सो यू नो वन लास्ट क्वेश्चन, एज एन आर्टिस्ट
जैसे अभी के टाइम में मोस्ट टेलीविजन शोज हैव अ लॉट ऑफ जनरेशनल लीप्स. So to sustain yourself as an artist in such such situations where there are leaps or there are shows going off air, how difficult is it for any actor for that instance? Are you particularly talking about like leaps or like Leaps, and most shows go off air. इस वक्त Anupama might be the only show which has lasted for this long. If you see from Yes, lockdown till now. And also I think ये रिश्ता also took recently a leap, but ठीक है, that show has been running since like what 14 years. Correct. So I think that is also one exceptional show, and Anupama Viz is of course there. What is surprising that कि the producers of these shows are the same. It's director's cut production, and Rajan sir is the mastermind behind that. What I think, if you ask, and being in a show which is number one, I think हम ऐसी ज़रूर बातें करते थे जहाँ हम एनालाइज करते थे कि बाकी शोज़ why are not they working and why are we on top. So we never had this, if you see, none of us from Anupama had this ego problem कि we are in the number one show or something like that. We always wanted to, we always focus on what we are doing irrespectively that we are number one. क्योंकि अगर हम शायद सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते तो we would have lost our track बहुत पहले ही. हम डाइवर्ट हो जाते, स्टारडम चढ़ जाता, या if you see, everybody is quite humble and living their lives very normally. And शो में मेरी जो वाइफ बनी है, मतलब पहले गर्लफ्रेंड थी, हाँ, निशी, वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो वेयर वी वर सेइंग यार लगता ही नहीं है कि हम नंबर वन शो में काम कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. क्योंकि अगर शायद आ जाती तो फिर कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस पीपल और एक्टर्स हु आर आर सीनियर्स जैसे सुधांशु सर, इन सब की बात नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड निशी. पीपल लाइक अस who are, I would say, we are pretty young comparatively to experience. In terms of experience, I'm not talking about age or something like that, but experience की बात करें हम, तो हमारे लिए शायद कहीं ना कहीं हम ज़रूर डाइवर्ट हो जाते कि हम जो कर रहे हैं सही है यार, नंबर वन शो में और टीआरपी तो आ ही रही है, तो ज़रूर हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं. बट दैट्स व्हाट द इन्वायरमेंट ऑफ द शो एंड द सेट हैज़ केप्ट अस सो ग्राउंडेड एंड सो ऑन आवर हील्स. क्योंकि हर एक एक्टर आपको चैलेंज करता है कि यू हैव टू डू योर बेस्ट. तो हमने कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि हम नंबर वन शो में, हम जो कर रहे हैं, एक टाइम आता ना, अगर आप नंबर वन हो, आप जो करोगे वो अच्छा ही होगा क्योंकि आप नंबर वन हो. अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो एक क्वेश्चन आता ना, तभी तो नंबर टू हो, राइट, है ना. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आप कुछ कर रहे हो और वो नंबर वन है तो आप ज़रूर अच्छा कर रहे हो. बट हमने कभी ऐसा फील नहीं किया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हर एक्टर ना इज़ सो गुड एंड वो आपको चैलेंज करते हैं. एंड दैट्स इफ coming to your previous questions where you asked me कि what is different and what keeps you in the set motivated or something like that. This is what is मतलब it's a feeling where you actually feel कि हर time आप अपने heels पे, and you have to, every scene you have to prove yourself. If you don't prove yourself, nobody is going to notice you because everybody is so good. You'll be lost in the crowd. So that's what was my struggle. जो मेरी जर्नी समर को लेकर हुई and people started accepting me. I had to work a lot and I had to manage their levels, match their levels जहाँ मुझे अपने आप को prove करना था. And coming to a scene which got, I mean, immense amount of love. The kitchen scene when it was my last scene where I think I got messages from people whom I don't know from the industry. And जब मैं scene कर रहा था, the biggest thing, two things happened that night. विच आई हैव नॉट टोल्ड दिस टू एनीवन. वो एक एक्टर की लाइफ में होता है जहाँ आपने, बहुत लोगों ने इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े एक्टर्स के सुना है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ में आपने ज़रूर सुना होगा कि एक एक्टर को आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक स्क्रिप्ट की, एंड देन यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर एंड इनटू द सीन एंड यू हैव टू फील इट, है ना. ये कहने में बहुत आसान लगता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअली आज तक अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये टेक्निकली तो होता होगा. यू एक्चुअली हैव टू जस्ट फोकस अ लॉट एंड आपको पढ़ना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कैच द नुआंसेस ऑफ द कैरेक्टर और आपको ऐसे फिगर आउट करना होता है. बट इट्स नॉट दैट डे आई एक्चुअली फेल्ट what it's actually like to get into the character and I could actually feel the emotion of the scene. and मुझे lines याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी.
आंसू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज इट वॉज सो नेचुरल. और दैट फीलिंग इज़ डिवाइन, ट्रस्ट मी. दैट्स व्हेन इट्स सेड ना कि एन एक्टर्स जॉब इज़ वेरी मैजिकल एंड द मैजिक इज़ रियल. उस दिन मुझे एक बात ये पता चली कि एक्चुअली दिस एग्जिस्ट, दैट एक्स थिंग विच आई थिंक लोगों को सालों साल निकल जाते हैं. ऐसा नहीं कहूँगा कि इट हैज़ स्टेड विथ मी. आई हैव ट्राइड, अभी तक मैंने रखा है उस फीलिंग को अपने साथ अलाइव, ताकि मैं आगे भी जब नए शोज़ करूँ या कुछ नया काम करूँ तो वो सेम टेक्निक मैं यूज़ कर पाऊँ, विच आई रियलाइज इन दैट मोमेंट. एंड बिकॉज ऑफ दैट सीन touched millions of hearts, and millions of people cried. And if as an actor you can make people cry on screen, especially on Indian television where you don't have time to actually rehearse, time to prepare yourself, या 50 बार लाइन याद करने का मौका नहीं मिलता. यू जस्ट गेट द स्क्रिप्ट ऑन टाइम, और जस्ट बिफोर द शॉट हमें स्क्रिप्ट मिलती है और हमें याद करना पड़ता है, एंड देन यू परफॉर्म. एंड तो ये चीज़, एक चीज़ मुझे ये सीखने को मिली बहुत अच्छा. दूसरी चीज़ मुझे, जब मैं सीन कर रहा था तो रूपाली मैम, so she has dry eyes. If people don't know, I'll tell people that कि dry eyes क्या होता है कि when you do a lot of emotional scenes, your eyes get dry, तो आपके आंसू नहीं निकलते. So she has to take things like glycerine or something like that, tear stick basically, जिससे fake tears आते हैं. तो for that scene she told me after years, after working like for 2 years back to back in Anupama and crying for a lot of things and getting emotional, she was like कि सागर तुझे देख के, I'm not saying you were समर तो तू था ही, but as a person I'm telling you, Rupali telling this to Sagar, that you have made me cry as an artist, and that was the biggest compliment I think I would have gotten in my life till date. कि रूपाली मैम आके मुझे बोले कि यार तूने मुझे रुला दिया. एंड इन द सीन शी टोल्ड मी कि you have taken this scene away from me, it is not my scene anymore. So that was what the feeling is, कि कोई आपको, एक सीनियर एक्टर आपको बोले कि I was lost in the scene, मुझे नहीं पता मैंने कैसा किया, क्योंकि तूने इतना अच्छा किया कि मैं खो गई. And cut to that, the third thing that happened, my director came and hugged me. So that was the biggest compliment for me, and the next day my life changed. That so I am happy with the exit also, because producers ने इतने अच्छे से मुझे वो opportunity दी, exit दिया. और जितना मैं शायद 1 साल में मुझे फेम नहीं मिला, वो मुझे 1 रात में मिल गया. तो एक सिंपल लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो इक्विवेलेंट है बिल्कुल. जो 1 साल में मुझे फेम मिला, बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में गए, बहुत 1-2 अवार्ड्स मिले, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बट दिस वन सीक्वेंस, एक सीन तो फेमस हुआ ही हुआ. एंड नॉट ओनली दैट सीन, आफ्टर दैट जितने भी सीन्स हुए सब बहुत हिट हुए और बहुत लोगों को अच्छा लगा. एंड स्टार प्लस ने कहा कि हम खुद नहीं देख पाए, इतने इमोशनल हो गए थे, हमारी फैमिलीज नहीं देख पाई. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मतलब एट दिस एज. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस. So I wrap it here. Yes.